Hello everyone, how are you all? Welcome to my channel. Student, in previous class we discussed a topic reflection of light. Today we will discuss a new topic that is refraction of light. There are so difference between the reflection and refraction. Okay, हमने देखा था reflection में the light changes its path when it strikes from an obstacle. ठीक है, either an obstacle, either from the mirror, whatever. But in refraction, it is quite different from the reflection. Okay, let's suppose we have two medium. एक मीडियम मेरे पास मान लीजिए ग्लास है और दूसरा मीडियम मेरे पास एयर है. When light ray move or either travel from one medium to another medium, okay, it becomes the ray become bent. यानी the bending of light when it travel from one medium to another medium is known as the refraction. देखिए कैसे. Let's suppose this is a medium. ये कोई एक मीडियम है, मैं इसको ग्लास स्लैब मान लेता हूँ. ठीक है, this is a slab, this is a rectangular piece of the glass. Okay, and light ray coming from here. ये आपका एक मीडियम है, मीडियम 1, और मीडियम 1 क्या है? That is air. And the second medium, that is medium 2, it is a glass. It is a glass. Okay, when light ray coming from the air, you can see here the light ray is coming from the air and it will enter from it will move or enter, it will enter the glass and then it will pass. Okay, लेट्स सपोज हमने प्रीवियस क्या देखा था, यहाँ पर हमने कोई पॉलिश कर दिया, ये कोई मिरर था. ठीक है, मिरर में हमने पॉलिश कर दिया था. नाउ द पॉलिशिंग सरफेस, जो सरफेस थी, जो पॉलिश्ड सरफेस थी, वो पॉलिश्ड सरफेस इस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर रही थी. नाउ देयर इज नो पॉलिश्ड. ओके, इट इज अ सिंपल ग्लास piece, glass rectangular piece. So when it will come from the air, now the path of the light. Okay, अभी ये पाथ कैसा है आपका? बिल्कुल ऐसा सीधा. इस लाइट को कैसा जाना चाहिए? It should be pass like this. Okay, इसको स्ट्रेट ऐसे पास होना चाहिए, बट ये ऐसे पास ना होके it become bent. ठीक है, इसका पाथ बेंट हो जाता है, ऐसा चेंज हो जाता है. दिस बेंडिंग ऑफ लाइट is known as the refraction. It is so simple. Okay, अब देखिए बेंडिंग कैसे हो रही, क्या होगा. Let's suppose I am drawing a normal here. ये नॉर्मल है, ग्लास पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है. And light ray coming from the medium air and entering from into the glass medium 2, and this angle, because this is a refracted ray, this is incident ray, this one is a refracted ray, so this angle is known as angle of incidence. आप पढ़ चुके हैं पहले. And this will angle of refraction. It is reflection. It is angle of refraction. This is a refracted ray. Okay, and when this ray will again enter into the air from glass, again it will bend like this. So this is the another normal here. ठीक है, ये दूसरा नॉर्मल है. and this angle, this ray is known as emergent ray. This is known as a emergent ray. ये इमर्ज हो गई बाहर, उस मीडियम से बाहर आ गई, इमर्ज हो गई. That is a emergent ray. And this angle is known as angle of emergence. Is it clear? This is the incident ray, refracted ray, and this one is emergent ray. Angle of incidence, angle of refraction, angle of emergence. तीनों एंगल देख लीजिए. नाउ हो क्या रहा है देखिए. When it coming from the air and entering into the glass from one medium to another medium, it becomes like this. ऐसी हो जाती है रे, टेढ़ी. ठीक है, इसका पाथ जो है बेंड हो जा रहा है. And this bending is towards the normal. And again
when it travels from glass to air and now ये फिर ऐसे बेंड हो, इसका बेंडिंग थोड़ा अलग है, इसका बेंडिंग इधर की ओर है, नॉर्मल की ओर है, बट इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड दिस इज अवे टू द नॉर्मल. ओके, नाउ अब देखिए जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, सेम इज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, ये सब क्या होंगे, लाइज इन अ सेम प्लेन. तो पहला लॉ तो आपका सेम है जैसा कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकेंड लॉ रिफ्रैक्शन क्या क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट हियर द एंगल ऑफ इंसिडेंट हैज नॉट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. आपको दिखता है, जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो. ठीक है, अब यहां पर भी आप देख सकते हैं, देयर इज नॉट इक्वल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर नॉट इक्वल. ओके, सो ये यहां पर ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एसेंशियल कि ये आपकी इक्वल हो, बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, सो तो सेकेंड लॉ क्या है, देखिए पहले तो ये समझते हैं व्हाई इट हैपनिंग, ये बेंडिंग क्यों हो रहा है. ठीक है, व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास या फिर किसी भी दो मीडियम, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर, ठीक है, या ग्लास और वाटर, दो मीडियम, कोई भी दो मीडियम, या ग्लास वाटर हो, एयर वाटर हो, या फिर एयर ग्लास हो, कोई भी दो मीडियम में जब लाइट रे एंटर करेगी सो ऑब्वियसली इट विल बी बेंड. अब बेंडिंग कहां की ओर हो रही है, हमने ये भी देखा, यहाँ पर टुवर्ड्स नॉर्मल थी, यहाँ पर अवे देन नॉर्मल थी. ठीक, सो हमारे पास दो मीडियम होते हैं, मीडियम हैज टू टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एंड सेकेंड इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. इज इट क्लियर? फर्स्ट है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड सेकेंड इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ऑप्टिकली रेयरर मीडियम उसे कहते हैं जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा रहती है, एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज वो मीडियम है जहां पर लाइट की स्पीड आपका लेस होगी, कम होगी. ओके, अब ध्यान से देखिए, एयर में लाइट की स्पीड होती है 3.0 into 10 to the power 8 meter per second. But in the glass, it is 2.0 into 10 to the power 8 meter per second. Around लगभग इन इसके होती है 2.0 into 10 power 8 meter per second. And in air 3.0 into 10 power 8 meter per second. अब आप देख सकते हैं the speed are different in different media. यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ज्यादा है 3.0 10 power 8. So it is a optically rarer medium and this one is optically denser medium. ये जो ग्लास स्लैब है ये this is optically denser medium. तो लाइट रे जब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो ये बेंड हो जाती है, या फिर when it travel from denser to rarer, again it will be bent. Okay, so the changing of the speed of light from two different medium, यहां पर आपका चेंज, लाइट का स्पीड अलग है, यहां पर लाइट का स्पीड अलग है, तो ये जो चेंज इन स्पीड आ रहा है इसके कारण ही आपका रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, when light ray enter from rarer to denser, it will always bend towards the normal, and when it will enter or travel from denser to rarer, the bending of light will away then normal. याद रहेगा, जब आपका लाइट रे
रेयर से डेंसर में आएगी, रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और जब डेंसर से आपका रेयर में जाएगी तो अवे देन, ऐसा बेंडिंग होगा लाइट का। ओके, इज इट क्लियर? अब स्नेल वाज अ साइंटिस्ट, ठीक है, स्नेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये दो पेयर जो आपका एक पेयर जो एक आपका रेयर मीडियम है, दूसरा डेंसर मीडियम है, दो पेयर लिए, कोई भी दो पेयर है, ठीक है, इस पर आपकी लाइट के स्पीड की स्टडी की थोड़ा, ठीक। तो स्नेल ने एक लॉ दिया, इट इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल ने एक लॉ दिया, दैट इज अ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दैट, व्हेन साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ठीक है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन has always been constant for a pair of two medium, ठीक है। समझते देखिए, स्नेल के अकॉर्डिंग साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, ये जो रेशियो है इट इज कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हैज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम n से दिखाते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया। आपका एयर से जब भी कोई चीज ग्लास में आएगी, ठीक है, तो हम इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ग्लास से कोई चीज वाटर में जा रही है तो आप वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर, मींस साइन ऑफ एंगल ऑफ आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन, ठीक है, एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का रेशियो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इस मीडियम का, ठीक है। तो आप मीडियम का, किसी भी मीडियम का, जब आपकी लाइट एयर से ग्लास में, एयर से वाटर में, या फिर वाटर से ग्लास, वाटर से एयर की कहीं पर भी जा रही हो, तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप की न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन टू डिफरेंट मीडियम। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट अलग थी, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट थी। So due to the change in speed of light, refraction has a cause. Okay. Next is when ये आपका इंसिडेंट रेडिएशन जो यहाँ पर हो रहा है स्टूडेंट, ये बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ये जो हो रहा है इसका रीजन बिकॉज इट इज इन अ एंगल, ये जो एक एंगल में है आई, अगर ऐसा हो, लेट्स सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे देखिए, लेट्स सपोज दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब ये स्लैब है आपका इस तरह से, एंड नाउ रेडिएशन इज लाइक दिस, ये आपका इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। सो इन दैट केस ये लाइट ऑफ रे, ठीक है, ये जो रे का जो आपका बेंडिंग हो रहा था इस तरह से, नाउ इट विल पासेस स्ट्रेट इन ओरिजिनल पाथ, ठीक है। बट याद ध्यान दीजिएगा, व्हेन इंसिडेंट रेडिएशन हैव परपेंडिकुलर, सो देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट, मींस नो रिफ्रैक्शन इज देयर। ओनली व्हेन इंसिडेंट रे will be an angle less than 90 degree, then it will be bent. Okay, only when it will be less than 90 degree. और 90 डिग्री तक आपका कोई बेंडिंग लाइट में नहीं होगा, उस कंडीशन में रिफ्रैक्शन नहीं होगा। Is it clear? अब यहाँ पे देखिए, this is the emergent ray and this is original path of the ray. ये रे का ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था, ठीक है, आपकी रे इस तरह से आनी चाहिए थी, बट ये आपका चेंज ऑफ स्पीड
यहाँ से दोनों में स्पीड आपका चेंज है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है, ठीक है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज है, दोनों का स्पीड चेंज है, इस वजह से आपका बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है, रिफ्रैक्शन का कॉज यही है, ठीक है। तो आपकी इमर्जेंट रे कुछ इस तरह से आ रही है। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे and the emergent ray, the perpendicular distance between the emergent ray and the original path of ray is known as the lateral displacement. इसको बोलते हैं स्टूडेंट lateral displacement. Okay, so the perpendicular पूछा जाता है, what is the lateral displacement? The perpendicular distance between the original path of ray and the emergent ray is known as the lateral displacement in refraction. Okay, okay. Now one more formula for the refractive index is here. देखिए, अभी आपने refractive index का एक फॉर्मूला पढ़ा था, n equals to sin I upon sin r, ठीक, n equals to sin I upon sin r. तो another formula is when light enter from 1 to 2, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, मीडियम 1 टू मीडियम 2, सो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसे लिखेंगे 1 2, मीन्स लाइट आपका वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, उस कंडीशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी v1 upon v2. What is v1? Speed of light in one medium to speed of light in another medium. So it is the second formula for the refractive index. With the help of these formulas and of refractive index, we can solve the numerical portion of this chapter also. ठीक है, और आपका मिरर का फॉर्मूला सेम रहेगा। लास्ट टाइम हमने मिरर के फॉर्मूले से भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। मिरर का फॉर्मूला क्या था आपके पास? अब तीन फॉर्मूले हो गए। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर है, v1 अपॉन v2, एंड एक मिरर का फॉर्मूला मैंने बताया था 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, ठीक है। with the help of these formulae you can solve the numerical portion of the chapter. Okay.